Hello friends, welcome to Ansarkari. I am Vikas Bhattwaj and today we are going to take up very important topic in polity, question hour. क्या कभी आपने सोचा है क्या रहा होगा पहला क्वेश्चन जो कि हमारी संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा which also includes प्रेसिडेंट में पूछा गया होगा। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। What is question hour and why it is important? Question hour यानी कि वो समय जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न काल। हमारे जीवन में भी प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है। From our childhood to our adulthood and to advanced age, we are either answering questions or we are asking questions. Questions are very much fundamental and key to understanding what is going on in someone's mind and whether any institution is working on the parameters as per guidelines or not. जहां तक बात है हमारी पार्लियामेंट की, जो पहला 1 घंटा सेशन का होता है, दैट इज व्हेन एंड वेयर पार्लियामेंट allows members to ask questions. They can ask questions, यानी member of parliament can ask questions to the ministers, including the prime minister, so as to make them accountable कि वो क्या काम कर रहे हैं and how the functioning is going on. Questions के पीछे जो purpose है, the purpose is to get true and bona fide information, ताकि जो भी फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बात की जाए या पार्लियामेंट में जो बात की जाए उसकी जो सैंक्टिटी है वो बरकरार रखी जाए. So from last 70 years you can say that MPs have successfully used this parliamentary device to throw light upon the functioning of the government. इससे बहुत कुछ बाहर निकल कर आया, जिसे हम कई बार कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना. संसद संविधान की जीवन धारा है and it is a very important medium between the constitution and the masses. तो चाहे फिर कैग के पास बड़े बड़े स्कैम्स की लिस्ट हो, चाहे फिर फ्लैगशिप स्कीम्स की बात की जाए, all kind of aspects and ideas they are being taken up and questioned and discussed in this forum, that is on the floor of the parliament. If we see how have been the functioning of the question hour, that is the first 1 hour in general, otherwise the timing can be changed also as per the discussion with the members of the speaker of the house or leader of the house. अगर हम बात करें 1999 से लेकर 2019 तक 2019 तक, तो अराउंड 50% ऑन एन एवरेज उसकी यूटिलिटी रही है. बहुत बार पार्लियामेंट गेट डिसरप्ट, there are other urgent issues which the members wants to raise in the beginning and they do not want, or you can say they don't let the functioning of the house effectively. That is why we say that question hour is very important in both Rajya Sabha and Lok Sabha and obviously in state assemblies also. When was the first question asked as we started? So first question asked in the British times, that is in 1893. It was on the burden cast on village shopkeepers who had to provide supplies टू टूरिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यानी एक तरीके का एक्सटॉर्शन, एक तरीके का उनके ऊपर बर्डन था, फाइनेंशियल एंड अदर बर्डन, जो कि रेज किया गया. यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड रिकॉल दैट बाय द काउंसिल एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 देयर वाज एंट्री ऑफ इंडियंस और indirect elections were there for the first time, and that's how you have many prominent leaders or most importantly moderate leaders. They got opportunity to air their views on the floor of the house, not in a very effective way, but that was a great beginning indeed as far as Indian national movement is concerned. How is the question hour regulated? अब क्वेश्चन पूछने की एक परिधि होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप पूछते चले गए या आपने कुछ भी पूछ लिया. That is why there are certain norms related with it. For example, presiding officers of the both houses, that is we are talking about the Lok Sabha and Rajya Sabha, उनके पास फाइनल अथॉरिटी है कि क्वेश्चन आवर का कंडक्ट कैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड कि सेशन के फर्स्ट आवर में, पार्लियामेंट्री सिटिंग के फर्स्ट आवर में क्वेश्चन आवर पूछा जाता है.
But in 2014, Rajya Sabha Chairman Hamid Ansari ji shifted question hour in the House from 11 AM to 12 noon. उसको 12 बजे कर दिया गया ताकि आते ही जब सेशन की शुरुआत होती है तो डिसरप्शन ना हो सके क्वेश्चन आवर का. So you can understand how important is the question hour. What kind of questions are asked? किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रश्न काल में? So there are guidelines. Constitution इस बारे में कुछ नहीं कहता, but there are guidelines on the kind of questions that the MPs can be asking, and there is a word limit also to 150 words. क्वेश्चन प्रिसाइज होने चाहिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, और जो मिनिस्टर है उसकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही क्वेश्चन होना चाहिए. क्वेश्चन किसी भी प्रकार के सीक्रेट या फिर आप स्ट्रेटेजिक बातों की या फिर ऐसी बातें जो कोर्ट में अभी हैं उनके बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए. प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एज आई सेड, दे विल बी फाइनली डिसाइड कि जो क्वेश्चन उठाया गया है दैट विल बी एडमिटेड फॉर आंसरिंग बाय द गवर्नमेंट और बाय द मिनिस्टर कंसर्न्ड और नॉट. लेकिन क्या एक्सेप्शंस है क्वेश्चन आवर की? कुछ क्या प्रश्नकाल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? बिल्कुल है. इफ वी से दैट क्वेश्चन आवर किन दिनों में होता है तो देन इट हैपेंस ऑन ऑल डेज ऑफ द सेशंस, एवरी डे इट इज हैपनिंग, बट द 2 डेज, एक बार जब प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे दोनों हाउसेस को सेंट्रल हॉल में, एंड देन on the first day of the new parliament year as he is doing, and secondly we are saying it is not done on the day when the finance minister is presenting the budget. तो दो ऐसे इंपॉर्टेंट डेज हैं सेशन की शुरुआत में, और आप कह सकते हैं न्यू पार्लियामेंट ईयर जब चालू होता है, और दूसरा आपका फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट प्रेजेंट करते हैं. हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड टिल नाउ? आज तक अंदाजा लगाइए कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके होंगे. क्या कई हजारों में है, क्या कई 100 में है, या यू से दे आर इन मिलियंस. Till now, approximately 15,000 questions have been asked in the lower house. That is only in the lower house. तो इसमें आप अपर हाउस जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद इंडिया के सारे स्टेट्स जोड़ दीजिए, और 2 यूनियन टेरिटरीज जहां पर आपकी लेजिस्लेशन है. तो आप सोचिए क्वेश्चंस की जो परिधि है, क्वेश्चंस की जो सीमा है वो बहुत बढ़ जाती है. एंड इट शोकेसेस द longevity and it also showcases the live nature of our parliamentary proceedings. How does these questions get answered? अब क्वेश्चन तो पूछा गया है, क्वेश्चन का आंसर देंगे कैसे, या क्वेश्चन कैसे आप असली जो है बात को निकलवाएंगे? सो एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो इन्हें ओरल आंसर चाहिए कि रिटर्न आंसर चाहिए. ओरल होगा तो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर होगा, वही इमीडिएटली आंसर देना पड़ेगा, और जो ओरल क्वेश्चन होंगे उन्हें हम एक तरीके से उस पर एक एस्ट्रिक मार्क लग जाता है, इसीलिए उन्हें स्टार्ट क्वेश्चन कहा जाता है. और मिनिस्टर जो है उन आंसर्स को देने के लिए बाध्य है. ही हैज टू गिव एन आंसर बिकॉज उसके पीछे एक फॉलो अप आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी हो सकता है. दिस इज द विजिबल पार्ट ऑफ क्वेश्चन आर. इसीलिए एमपी चाहते हैं कि वो कॉर्नर करें मिनिस्टर को, उनकी फंक्शनिंग को कॉर्नर करें, और पूरा भारत उन चीजों को टीवी के ऊपर लाइव देखे. बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट सीजन पार्लियामेंट्रियन रहे हैं जो कि ओरल क्वेश्चन पूछते हैं, और वो गवर्नमेंट को जो है स्पॉट में या अनकंफर्टेबल पोजीशन में लाना चाहते हैं, या फिर वो इसी बात के ऊपर प्रूव करना चाहते हैं कि इफ द मिनिस्टर सेज अ रॉन्ग आंसर, इफ इट इज नॉट एबल टू पुट आंसर कंफर्टेबली, तो आप जानते हैं कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे आ जाती है, एंड दैट इज हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर. और बाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी इस नजरिए लाया जा सकता है. देयर हैव बीन स्टालवर्ट्स इन द इंडियन हिस्ट्री of constitution and democracy. For example, our former honorable prime minister, late prime minister Atal Bihari Vajpayee, even Indira Gandhi, Govind Vallabh Pant, there have been great leaders, and especially in the times of the socialists, for example Jay Prakash Narayan, or even Lohia ji, Ram Manohar Lohia ji. And in the recent past, if you see in the last 2 decades, there were leaders like George Fernandez who played very important role. In the present times also, अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे many member of parliaments are very active, and they are actually helping democracy to prosper and to thrive. But स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाए उन आंसर्स को? इसीलिए मिनिस्ट्रीज को 5 ग्रुप्स में बांट दिया गया है. 5 ग्रुप्स में बांट दिया गया, और साथ में उनके डेज भी अलॉट कर दिए गए हैं. सो ईच डे इज अलॉटेड टू अ डिफरेंट मिनिस्ट्री. यानी कि राज्यसभा में एक दिन होगा, लोकसभा में एक दिन होगा. फॉर एग्जाम्पल कल्चर मिनिस्ट्री, सो टूरिज्म एंड कल्चर, अगर मंडे राज्यसभा है तो ट्यूसडे लोकसभा होगा. सो देयर इज नो क्लैश, यू नो, देयर इज अ सिस्टमिक अप्रोच.
इस वजह से आप कह सकते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है और एक साइक्लिकल अप्रोच से कार्य भी ठीक से हो पाता है। How do ministers prepare their answers? Now there comes the role of bureaucrats, officers, and obviously the research team which is there with the ministers. So ministers और ministries are getting 15 days in advance. क्वेश्चन उन्हें मिल गया, उन्होंने क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर दिया और फॉलो अप के लिए भी रेडी रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैकअप में रहते हैं, वो तैयार रहते हैं, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट देने के लिए रेडी रहते हैं। जैसे ही बात होती है तो वो थ्रू officers and the officials of Lok Sabha and Rajya Sabha they send the relevant information to the minister, गैलरी से भेज देते हैं ताकि मिनिस्टर जो है उन्हें ठीक से आंसर दे सके। ऑनरेबल मिनिस्टर को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। MPs when they are trying to get data, they are also trying to get such queries in writing. वो भी कोशिश करते हैं कि as much as हो सके हमें इंफॉर्मेशन मिले, और जो राइटिंग में जो आंसर्स मिनिस्टर्स देते हैं उसको हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस कहते हैं। जैसा हमने पहले कहा, ओरल क्वेश्चंस हो गए आपके स्टार्ड, और जो अनस्टार्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके लिखित में रखे जाते हैं, और रिस्पॉन्सेज जो है वो टेबल ऑफ द पार्लियामेंट में दिए जाते हैं ताकि वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन सके और वो पब्लिक डोमेन में भी रहते हैं। एक्सेप्ट स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस, rest of the questions which are dealing with the public life, they must be asked and they can be asked by the member of parliament on the floor of the house. Can the question only be asked to the ministers? अब भाई पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, लोकसभा और राज्यसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्या इस मायने में क्या सिर्फ मिनिस्टर से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सोचिए और बताइए। Now the questions member of parliament they are usually asking to the ministers concerned to hold them accountable to the ministries. लेकिन क्वेश्चंस जो हैं आप दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी पूछ सकते हैं, किसी बिल के मद्देनजर, किसी रेजोल्यूशन के मद्देनजर, यदि उन्होंने वो पेश किया है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इफ इज अलाउइंग देन एमपी कैन आस्क अ क्वेश्चन टू ए मिनिस्टर एट अ नोटिस पीरियड ऑफ शॉर्टर देन 15 डेज ऑल्सो। 15 दिन से पहले आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मौका दिए बिना पूछ सकते हैं। मिनिमम ऐसा हमने बताया कि 15 दिन का टाइम होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में या इंपॉर्टेंट केसेस में एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पूछ सकते हैं मिनिस्टर से क्वेश्चन एक शॉर्ट नोटिस पर भी। दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में नहीं, इधर द बिल और द रेजोल्यूशन दैट दे आर पुटिंग अप और दे आर पासिंग रिलेटेड विद द हाउस, रिलेटेड विद द सब्जेक्ट, आप इस बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट ओनली विद द परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। So what are the limitations? As I already said, we know strategic, judicial, secret in nature because of the government restrictions. These are some of the what I should say limitations on the kind of questions you can ask. No personal questions, no prejudices and no unparliamentary questions. किसी प्रकार के अभद्र व्यवहार वाले या किसी प्रकार की ऐसी बात जो कि शोभनीय नहीं है पब्लिक लाइफ के लिए, that will not be asked. So what we can say that limit, अगर हम कहें in the beginning there was no limit on the unstarred questions, जो भी एक दिन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के रूल्स जो हैं वो लिमिट करते हैं कि एक दिन में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड मैक्सिमम इज 20 and you can say 230 for the writing. Now most importantly आप कैसे 20 क्वेश्चन चूज करेंगे? तो there is a random ballot. बैलेट के थ्रू आप पता लगाते हैं, आप उसमें हाथ डालते हैं और आप एक क्वेश्चन उठाते हैं और वो क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय एमपीज, जैसा कि मैंने बोला, उन सबको डाल दीजिए और उसके बाद आप एक क्वेश्चन उठाइए और इस प्रकार से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं इफ टाइम परमिट्स। So after a gap of 47 years, all 20 questions were answered in Lok Sabha last year, that is in 2019. एक तरीके से वो रिकॉर्ड है। So can there be parliamentary sitting without question hour? जैसा कि प्रेजेंट टाइम्स में हमने समझने की कोशिश की, क्या ऐसा पॉसिबल है? लेकिन अगर हम एक जनरल आंसर की बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ये बड़ी ही अशोभनीय और बड़े दुख का विषय होगा if that happens, but otherwise if circumstances arises, क्या ऐसा कभी हुआ है? चलिए देखते हैं। So yes, parliamentary records show that during the Chinese aggression in 1962, winter session जब एडवांस कर दिया गया था चाइनीज एग्रेशन के कारण, सिटिंग ऑफ द हाउस 12 बजे शुरू होती थी और देयर वाज नो क्वेश्चन आवर। बिफोर द सेशन चेंजेस वर मेड लिमिटिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद एग्रीमेंट किया गया अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में
और उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर देते हैं। तो एक तरीके से तालमेल की बात है। दिस इज द काइंड ऑफ अ bonhomie which is showcased between the ruling party and the opposition, which can show further light on the growth and the liveliness of the constitution and its functioning. I hope you enjoyed, and there were certain kind of ideas which you got from it. I'm looking forward to your comments. Thank you very much for giving your precious time. Do like, share, and subscribe our channel.